हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास इंग्लिश कम्युनिकेटिव का एक क्वेश्चन पेपर। ये एनुअल एग्जामिनेशन 2023 टू 24 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले है सेक्शन ए, रीडिंग स्किल्स। एक पैसेज गिवन है, केयरफुली रीड करना है, फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है। So it is indisputable fact that the world has gone too far with the innovation of new technologies such as mobile phones, the internet and so on, due to which people are able to tour the cosmos virtually, sitting at one place, using their smart devices and other technological gadgets. Though mobile internet access is often times hurried and short, it can still provide common internet features like alerts, weather data, emails, search engines, instant messages and games and music downloading. Due to the easy access of smartphones, communication has been very effective and instant. People are able to convey their message all around the globe to their loved ones without spending hefty sums of money. Adults are always fond of such gadgets and they always welcome and adopt such new technology readily. Further, young people have been able to broaden their minds and improve their skills by doing research on the internet. For instance, they use smartphones to look up any new word they come across, as we know that most of the universities have online teaching provision and smartphones assist the students to complete their assignments on time. The mobile phone has been a lifesaver for a lot of people in case of an emergency. Likewise, use of smartphones can be of vital importance in preventing crimes in the society by providing information to the security forces in time. Nonetheless, for the young, the use of mobile phones can be like an addiction and they can misuse it. Young people are also prone to getting involved in undesirable activities on the internet. This might have adverse effect on their academic performance. Therefore, young people should always be monitored and made aware of its bad outcomes. Also, a major contributor to its popularity is the availability of prepaid or pay as you go services from a phone shop or an online store. This allows subscribers to load text or airtime credits to their handsets by the use of their credit cards, debit cards, or by buying a prepaid card from the network they subscribe to. This plan also doesn't commit a particular customer to a contract. If prepaid cards is not that appealing to you, then you can opt to subscribe using the pay by month plan. Okay, now based on your understanding of the passage, answer the following questions. The reason why communication today has become very effective and instant is because of, आजकल कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव और इंस्टेंट हो गई है क्योंकि मोबिलिटी सिस्टम इंक्रीज हुआ है, ईजी एक्सेस है अभी लोगों के पास स्मार्टफोन का, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। बी ऑप्शन सही है। यंग पीपल विद स्मार्टफोन्स इन देयर हैंड्स, यंग लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, आर नीडेड टू बी मॉनिटर्ड, लेकिन उनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है बिकॉज दे वेस्ट टाइम, दे बी नेग्लिजेंट, मिसयूज द गैजेट, बी इंडल्ज इन अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ ऑन द इंटरनेट। तो इसमें गैजेट्स को मिसयूज़ करते हैं और अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ विच वर्ड करेक्टली स्टेट द टू मीनिंग ऑफ वर्चुअली एज यूज इन पैरा 1। पैरा 1 में वर्ड वर्चुअली यूज़ हुआ है। सो स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की वजह से लोग अभी एबल है कि वो कॉस्मॉस को टूर कर सकते हैं वर्चुअली, सिटिंग एट वन प्लेस यूजिंग देयर स्मार्ट डिवाइसेस। तो एक तो वर्चुअली का मतलब है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, इंटरनेट को यूज़ करके। वर्चुअली मतलब यूजिंग इंटरनेट। और एक वर्चुअली जो इंग्लिश का वर्ड है, वर्चुअली मतलब एंटायरली, फुल्ली, या फिर फॉर ऑल पर्पजेस। ये दो मीनिंग है यहाँ पर वर्चुअली के। नेक्स्ट, नाउ हाउ हैज़ द वर्ल्ड गॉन टू फार इन मॉडर्न टाइम्स। तो माँ का क्वेश्चन है कैसे वर्ल्ड अभी बहुत आगे निकल गया है मॉडर्न टाइम्स में। सो द वर्ल्ड हैज़ गॉन टू फार विद द इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ के इनोवेशन से, जैसे मोबाइल फ़ोन्स है, इंटरनेट है एंड सो ऑन। ये आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज hefty sum of money, बहुत ज़्यादा पैसे का मतलब है पैसेज में।
hefty sum of money means large amount of money. The mobile phones is considered a lifesaver in case of. मोबाइल फ़ोन्स को लाइफ सेवर कहा गया है इन केस ऑफ इमरजेंसी के केसेस में. नेक्स्ट इज नाउ द पैसेज सजेस्ट ग्रोन अप्स दैट दे शुड एनकरेज द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बाय द यंग पीपल. जो यंग जनरेशन है मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करती है, उन्हें चाहिए कि वो ग्रोन अप्स को भी एनकरेज करें न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए. ये पैसेज में कहा गया ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ व्हाट इज़ राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. पैसेज का सेंट्रल आइडिया है कि मोबाइल फ़ोन्स इंडीड बहुत यूज़फुल है, लेकिन उसके लिए जो एक मॉनिटर्ड यूसेज की, केयरफुल यूसेज की ज़रूरत है, स्पेशली अमंग यंग पीपल. तो आप लिख देंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट वाइल मोबाइल फोन्स are indeed very useful, it emphasizes the need for careful and monitored usage, especially among young people. ओके नेक्स्ट. नाउ एक और पैराग्राफ गिवन है, इसको आप खुद से कर लेंगे. सो 20 मार्क का है ये रीडिंग सेक्शन, जिसमें 10 मार्क्स के 2 पैराग्राफ्स होंगे. ओके नेक्स्ट. नाउ सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन. 24 मार्क का सेक्शन है. राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स. लगभग 50 वर्ड्स में एक नोटिस आपको लिखना है स्टूडेंट्स को इनवाइट करने के लिए टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑफ योर स्कूल. अपने स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स आप देंगे. आपका नाम आकाश गुप्ता है, स्कूल कैप्टन ऑफ MNG हाई स्कूल एर्नाकुलम. ओके सो इस तरीके से आप लिखेंगे. नोटिस को हमेशा बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं और बहुत टू द पॉइंट, बहुत डिटेल में नहीं लिखना. वैसे भी 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट आपको गिवन है. तो सबसे पहले टॉप सेंटर में आपके स्कूल का नाम, फिर कैपिटल लेटर्स में नोटिस, लेफ्ट में डेट जब आप नोटिस लिख रहे हैं, सेंटर में कॉम्पिटिशन का नाम. तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 24 मार्च 2024 एंड इट विल बिगिन एट 8 AM. तो जो कॉम्पिटिशन है वो आपको बताना है कब होगा, किस टाइम से शुरू होगा, कहाँ होगा, कौन कौन से इवेंट्स उसमें हैं, और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना है बस. तो सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होने वाला है 24 मार्च 2024 को सुबह 8 बजे से. फिर बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ गेम्स टू बी हेल्ड इन द कॉम्पिटिशन. कुछ गेम्स के नाम लिख देंगे जो उस कॉम्पिटिशन में होंगे. स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द अबव लिस्टेड कॉम्पिटिशन. जो बच्चे इनमें से किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड है, दे कैन गिव देयर नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन टू स्पोर्ट्स टीचर. वो स्पोर्ट्स टीचर को उनके नाम दे देंगे बाय 20 मार्च, 20 मार्च तक. और फिर नीचे आपका नाम जो गिवन है आकाश गुप्ता, स्कूल कैप्टन. ओके नेक्स्ट. नाउ राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स इन 100 वर्ड्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर. रीडिंग न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस के बारे में 2 फ्रेंड्स के बीच की कॉन्वर्सेशन को आपको लिखना है. सो इस तरीके से आप लिखेंगे. फ्रेंड 1, फ्रेंड 2 या नाम भी आप दे सकते हैं कुछ भी, मोहन, सोहन, रोहन या राम श्याम. सो फ्रेंड 1 सेज, हैव यू नोटिस्ड हाउ सम पीपल डोंट रीड न्यूज़पेपर्स एनी मोर. क्या तुमने नोटिस किया कि आजकल लोग न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हैं. फ्रेंड 2 सेज, येस आई हैव नोटिस दैट टू. मैंने भी ये नोटिस किया है, बट आई थिंक रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज़ स्टिल रियली इंपॉर्टेंट. लेकिन मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना अभी भी बहुत ज़रूरी है. टोटली इट्स लाइक अ विंडो टू द वर्ल्ड. यू गेट टू नो अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस. ये वर्ल्ड की एक विंडो के जैसा है. हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हो रही है उनके बारे में हमें पता लगता है. एंड इट्स नॉट अबाउट द बिग न्यूज़. सिर्फ बिग न्यूज़ के बारे में ही नहीं है. न्यूज़पेपर्स जो लोकल इवेंट्स हैं उन्हें भी कवर करता है, स्टोरीज़ को दैट वी माइट नॉट हेयर अबाउट अदरवाइज, जिनके बारे में अदरवाइज हमें पता नहीं लगेगा. एग्जैक्टली इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर कम्युनिटी बेटर. ये हमें हमारी कम्युनिटी को और अच्छे से समझने में हेल्प करता है. प्लस इट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट द डे. प्लस ये एक अच्छा तरीका भी है दिन को शुरू करने का. इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की बजाय रीडिंग द न्यूज़पेपर गिव्स अस ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन्स एंड हेल्प अस फोकस. तो न्यूज़पेपर पढ़ना एक स्क्रीन टाइम को हमारे कम करता है, उससे हमें ब्रेक देगा और हमें फोकस करने में भी हेल्प करेगा.
इट्स रिलायबल टू, इस पर आप रिलाई भी कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। अनलाइक सम स्टफ ऑनलाइन, जैसे कि कुछ ऑनलाइन स्टफ्स होते हैं उनसे अलग न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स होते हैं हु मेक श्योर दैट द इन्फॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, जो मेक श्योर करते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही हो। रीडिंग न्यूज़पेपर ऑल्सो हेल्प अस बिकम गुड सिटीजन्स, बेटर सिटीजन्स बनाने में हमें वो हेल्प करता है। वी लर्न अबाउट आवर राइट्स, हमें हमारे राइट्स के अधिकारों के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, एंड हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, ये भी पता लगता है। सो ट्रू, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, इट्स अबाउट बीइंग एन एक्टिव पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। Exactly, let's make sure that we keep reading newspapers and staying connected to the world around us। ये 100 से ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायलॉग्स लिखने हैं। नेक्स्ट, सो यू आर प्रिया लिविंग इन चेन्नई, आपका नाम प्रिया है, चेन्नई में आप रहते हैं। यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर 9th ग्रेड, आपने जस्ट अभी 9th क्लास कंप्लीट की है अंडर द रिवैम्प्ड सिस्टम ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई का जो चेंज सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग एक लेटर आपको लिखना है इन अबाउट 120 वर्ड्स टू योर फ्रेंड जो कोलकाता में रहती है, टेलिंग हर अबाउट योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस बताने के बारे में। ये कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है जिनको आप कुछ क्लूज दिए हैं जिनको इंक्लूड कर सकते हैं। इनिशियली डाउटफुल, जब शुरू में आपको पता लगा चेंजेस हो गए हैं, सिस्टम चेंज हुआ है तो आप डाउटफुल थे, लेकिन फिर लेस स्ट्रेस था, टेंशन कम हुई, रेगुलर स्टडी आप करने लगे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिला, अटेंडेंस आपकी इंप्रूव हुई, क्लासेस और ज़्यादा इंटरेक्टिव हुई, फन फील्ड एंड इंजॉयबल, नो नीड टू बर्न मिडनाइट ऑयल। बेसिकली जो ये एक ही बार एग्जाम होते थे पहले, वो अभी सिस्टम चेंज हो गया है। बीच बीच में आपके एफएज होते हैं, एसेज होते हैं जिनके मार्क्स फाइनली आपके एग्जाम में जुड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन सिर्फ आपको पढ़ना है, नो वन टाइम पेपर पेन एग्जाम। ओके, तो इसके बारे में आप लिखेंगे। सो ये फॉर्मेट है, सबसे पहले एड्रेस आएगा आपका, डेट एंड देन फ्रेंड का नाम। डियर श्रुति, I hope this letters finds you well. I wanted to share my experience of completing 9th grade under the revamped CBSE system with you. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 9th grade कंप्लीट करने का अंडर रिवैम्प्ड सीबीएसई सिस्टम, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। एट फर्स्ट आई मस्ट एडमिट, शुरू में मैं एडमिट करती हूँ, आई वॉज बिट डाउटफुल, मैं थोड़ी सी डाउटफुल थी अबाउट द चेंजेस, जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में। बट नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट इट हैज़ बीन क्वाइट अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, लेकिन अभी मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस था। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस आई नोटिस्ड वाज द रिडक्शन इन स्ट्रेस एंड टेंशन। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज मैंने देखा कि अभी स्ट्रेस और टेंशन कम हो गई है, रिड्यूस हुआ है। विद द वर्कलोड स्प्रेड आउट मोर इवनली, क्योंकि जो वर्कलोड था पढ़ाई का वो इवनली स्प्रेड हो गया है, फैल गया है। पूरे साल एग्ज़ाम होते हैं, हर आफ्टर 2-3 मंथ्स आपको एग्ज़ाम देना है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट में आपको स्ट्रेस होगा। आई फाउंड माई सेल्फ एबल टू स्टडी रेगुलरली विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड, तो रेगुलरली अब मैं पढ़ने लगी हूँ। दिस ऑल्सो अलाउड मी टू पार्टिसिपेट, इसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर पाती हूँ, दैट आई एन्जॉय, विच नॉट ओनली हेल्प मी रिलैक्स, जो सिर्फ मुझे रिलैक्स करने में ही हेल्प नहीं करती, बट ऑल्सो बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, उसने मेरे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट किया। मोर ओवर आई नोटिस अ कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन अटेंडेंस में इंप्रूवमेंट हुई है, एज स्टूडेंट्स सीम मोर मोटिवेटेड टू अटेंड क्लासेस, द क्लासेस देमसेल्व्स बिकम मोर इंटरेक्टिव, फन फील्ड एंड एंजॉयबल, क्लासेस भी और इंटरेक्टिव हो गई है, फन फील्ड है, एंजॉयबल है, टीचर्स एनकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन के लिए, डिस्कशन के लिए, मेकिंग लर्निंग अ मच मोर एंगेजिंग एक्सपीरियंस। अभी लर्निंग एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस है। परहैप्स द बेस्ट पार्ट इज द एलिमिनेशन ऑफ नीड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम्स। एक जो होता था एग्जाम से पहले ही रात आपको पढ़ना है, वो कॉन्सेप्ट अभी एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सोलली ऑन वन टाइम पेपर एंड पेन टेस्ट, सिर्फ आप एक बार जो पेन पेपर टेस्ट होता था उस पर आप रिलाई नहीं करते हैं। रिलाई करने की बजाय जो इवेल्युएशन प्रोसेस है उसमें बहुत सारे असेसमेंट मेथड्स हैं विच आई फाउंड टू बी फेयरर एंड मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, जो ज़्यादा फेयरर है और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। ओवरऑल जो रिवैम्प्ड सीबीएसई सिस्टम है हैज़ मेड 9th grade a much more enriching and enjoyable experience for me. I am eager to hear about how things are going on your end. मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी एंड पर चीज़ें कैसी हो रही है, एंड वॉट योर थॉट्स आर ऑन द चेंजेस, और चेंजेस पर तुम्हारे क्या विचार है। वार्म रिगार्ड्स, नीचे आपका नाम। ओके, जो क्लूज दिए हैं ईजी हो जाता है थोड़ा सा लिखना, और फिर कोशिश करनी है कि सभी को हम इंक्लूड करें। आगे है रमेश, एक स्टूडेंट है एबीसी पब्लिक स्कूल का, वो एक ट्रैकिंग पर जाता है अपने एनसीसी कैंप पर हिमाचल प्रदेश में। यूजिंग द फॉलोइंग नोट्स, अगेन कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है।
आपको टुगेदर विद योर ओन इन दी यूनिट एडवेंचर एक पैराग्राफ आपको लिखना है रमेश के लिए अबाउट हिज ट्रेकिंग इन अबाउट 150 वर्ड्स. सो बेस कैंप था रायसन में इन मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग, ट्रेकिंग फ्रॉम रायसन टू जन वर्जिन ग्रीनरी. ब्यास रिवर बैंक वॉक थ्रिलिंग, रीच्ड पिन्नी वाया ब्रिंगटा ब्रिज. वाटर tumultuous and horrifying cross dense forest and hills, a ghost-like place. Required a rare courage to cross, saw rare birds, nature in full glory, fascinating. कुछ वर्ड्स आपको गिवन है. Reached Manikaran hot spring, rare scenes still fresh. Okay. So during my NCC camp in Himachal Pradesh, I went on an unforgettable trekking adventure. So starting from base camp at Raisen, nested in the serene surroundings of Manikaran hot water spring, I set on a journey filled with excitement and wonder. जो वर्ड्स गिवन है वही हम यूज़ करेंगे, कुछ अपने वर्ड्स ऐड कर देंगे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. सो बेस कैंप एट रायसन, मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग, trekking from Raisen to Jana virgin greenery. So the trek from Raisen to Jana was a mesmerizing experience, greeted by the sight of virgin greenery lining on the banks of Bias River bank. Then walk thrilling. So as I walked, the thrill of the adventure increased, especially when I reached Pinni after crossing the Bringta Bridge hills. Now Pinni was like a ghost-like place, with tumultuous and horrifying water adding to its charm. When we passed through crossed dense forest, the trek was nothing short of fascinating, with every step requiring a rare courage to overcome obstacles. Required a rare courage to cross. Now saw rare birds, and uncertainties along the way. Amidst the wilderness, I was fortunate to spot rare birds, adding to the touch of magic to the already enchanting journey. Now finally reaching the Manikaran hot spring was a moment of sheer bliss. The rare scene of natural beauty I witnessed throughout the trek was still fresh in my mind. Okay. Now इसके और में क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ आपको लिखना है इन अबाउट 150 वर्ड्स about the role that information technology or computers play in the growth and development of children. So information technology and computers play a crucial role in the growth and development of societies worldwide. Firstly, they facilitate communication. अभी easy हो गया है by enabling instant messaging है, emails हैं, social media platforms हैं, connecting people across the globe and fostering collaboration in various fields. Moreover, information technology enhances education by providing access to online resources हैं, e-books मिल जाती है, education softwares हैं, making learning more engaging and accessible to students of all ages. In the business sector, computers streamline processes, improve efficiency and enable online transactions, leading to increased productivity and economic growth. Additionally, information technology revolutionizes healthcare by facilitating electronic medical records, telemedicine and medical research, ultimately improving patient care and saving lives. Furthermore, computers have transformed entertainment activities, offering a platform of digital entertainment options such as streaming services, gaming and virtual reality experiences. In the field of transportation, information technology powers navigation system, traffic management and ride sharing apps, enhancing convenience and safety for commuters. Overall, information technology and computers are playing a fundamental role in the growth and development of societies worldwide. ओके सभी फील्ड्स, एजुकेशन के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिसिन, ओके एंड बिजनेस. नेक्स्ट आगे है सेक्शन सी, ग्रामर. फर्स्ट इज डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स. एजुकेशन इज ब्लैंक इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स एज इज फूड. सो एजुकेशन इज एज इम्पॉर्टेंट, उतनी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए जितना फूड है. नो वन कैन प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन. एजुकेशन के बिना कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है. इट एक्चुअली मेक्स मैन, एक्चुअली में ये मेक्स मैन अ रियल मैन. यही है जो मैन को एक रियल मैन बनाती है. ना कुछ पैसेज गिवन है, एडिटेड नहीं है, हर लाइन में एरर है, इनकरेक्ट वर्ड्स को लिखना है और करेक्शन को लिखना है अगेंस्ट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर. सो एट अ सर्टेन विलेज इन द प्रोविंस ऑफ ला मांचा एट स्पेन देयर लिव द सो इन एट रॉन्ग है, एरर है.
इन अ सर्टेन विलेज, एक गांव में, इन द प्रोविंस ऑफ ला मांचार्ड, स्पेन, देयर लिव्ड, रहता था एक जेंटलमैन, lived a gentleman, a gentleman of about 50 years of age. He was tall and thin and has had giant features. Okay. कॉन्वर्जेशन गिवन है, रीड करिए. कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ जज एंड द प्रिजनर, एक कैदी और जज के बीच में, और फिर कंप्लीट करिए पैराग्राफ को. सो जज सेज व्हाट आर यू चार्ज्ड विद, क्या चार्जेस है तुम पर. प्रिजनर सेज सर डूइंग माई दिवाली शॉपिंग अर्ली, मेरे ऊपर चार्ज है कि मैंने दिवाली शॉपिंग पहले कर ली. बट दैट्स नॉट एन ऑफेंस, लेकिन वो तो कोई ऑफेंस नहीं है. एंड हाउ अर्ली वर यू एग्जैक्टली डूइंग इट, तुम कितना पहले उसको कर रहे थे. प्रिजनर कहता है वेल सर, टू अवॉइड द रश, भीड़ ना हो उसे अवॉइड करने के लिए, आई थॉट इट वुड बी बेटर इफ़ आई कंप्लीटेड इट बिफोर द स्टोर ओपन, तो मैंने सोचा कि भीड़ होने से पहले, जब तक स्टोर ओपन हो उससे पहले ही मैं शॉपिंग कर लेता हूँ. बेसिकली वो चोरी कर रहा था. सो द जज बीइंग, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, द जज बीइंग इन अ गुड मूड बिफोर द दिवाली फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल से पहले जज अच्छे मूड में था. ही आस्क्ड द प्रिजनर, तो उसने प्रिजनर से पूछा व्हाट ही हैड बीन चार्ज्ड विद, व्हाट ही हैड बीन चार्ज्ड विद, कि उस पर क्या चार्ज लगाया गया है. द प्रिजनर सेंसिंग हिज मूड, प्रिजनर ने मूड सेंस कर लिया जज का. पोलाइटली उसने रिप्लाई किया दैट ही हैड बीन चार्ज्ड, that he had been charged with doing his दिवाली शॉपिंग अर्ली, जल्दी दिवाली शॉपिंग करने का चार्ज उस पर है. द सरप्राइज्ड जज डिक्लेयर्ड दैट इट वॉजंट एन ऑफेंस, जज हैरान हो जाता है, डिक्लेयर करता है कि ये तो ऑफेंस नहीं है. ही फर्दर इंक्वायर्ड, और फिर से वो इंक्वायरी करता है ऑन हाउ इट वॉज बीइंग डन, ये कैसे हुआ. इट वॉज बीइंग डन, और फिर हम्बली प्रिजनर रिप्लाई करता है दैट टू अवॉइड द रश ही हैड थॉट इट वुड बी बेटर इफ़ ही हैड कंप्लीटेड दैट बिफोर द स्टोर हैड ओपन. बस ये है ग्रामर सेक्शन. आ गया सेक्शन डी, लिटरेचर. आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं. सो कुछ एक पैराग्राफ गिवन है, रीड करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है, दो में से एक को. ऑफ नहीं, रीड द गिवन एक्सर्प्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग, मतलब ये शॉर्ट में एक पार्ट गिवन है पोएम का या फिर पैराग्राफ का, और फिर क्वेश्चन को आंसर करना है फॉर एनी टू एक्सर्प्ट्स ऑफ द थ्री गिवन, तीन में से दो, तीन गिवन है ए बी एंड सी. ठीक है. सो ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर माई टीथ, यही है पोएम का नाम भी. एंड स्पॉटेड द पेरल्स बीनीथ ऑल द टॉफीज आई चूड एंड द स्वीट स्टिकी फूड, ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर माई टीथ. फर्स्ट इज व्हाट इज द पोएट्स विश, इसमें पोएट की विश क्या है कि उसने अपने टीथ का पहले अच्छे से टेक केयर उनको किया होता. सो द पोएट्स विश्ड दैट शी हैड टेकन बेटर केयर ऑफ हर टीथ. नाउ व्हाट हार्म्ड हर टीथ, उसके टीथ को किसने हार्म किया है. द टॉफीज एंड स्वीट स्टिकी फूड. आंसर नंबर 2. नाउ गिव द मीनिंग ऑफ स्पॉटेड, स्पॉट करना मतलब नोटिस करना. सो नोटिस्ड. व्हाट राइट द राइम स्कीम ऑफ द अबव लाइन्स, राइम स्कीम क्या है. सो टीथ बीनीथ राइमिंग है ए ए, च्यूड फूड बी बी, एंड देन अगेन टीथ ए बी बी ए, ये राइम स्कीम है. ओके नेक्स्ट. नाउ आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू, मैं गाँव में किसी से पूछ सकती थी लेकिन मैं बहुत एम्बेरस थी किसी से पूछने के लिए, मतलब किसी से वो बुक रीड कराने के लिए कि कोई उन्हें काशी यात्री पढ़ के सुना दे. आई फेल्ट सो वेरी मच डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मैं बहुत डिपेंडेंट और हेल्पलेस फील कर रही थी. यू ऑल वेल ऑफ बट वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. वेल ऑफ मतलब अच्छे वेल्दी हम थे, लेकिन मनी का क्या यूज़ अगर मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ. हु इज़ आई इन दीज लाइन्स, आई कौन है. ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर. नाउ वाई डिड शी फील डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वो क्यों फील करती थी, क्योंकि वो इलिटरेट थी, उन्हें पढ़ना नहीं आता था और इसीलिए वो काशी यात्रे पढ़ने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट थी. सो शी फेल्ट डिपेंडेंट बिकॉज शी was illiterate.
ओके, नाउ व्हाट डज द फ्रेज वेल ऑफ मीन? वेल ऑफ का मतलब यहाँ पर है वेल्दी, मनी वाइज, वेल्दी. व्हाट डज द ग्रैंड मदर मीन बाय आई कुड हैव आस्क्ड समबडी? मैं किसी से पूछ सकती थी. यहाँ पर ग्रैंड मदर का क्या मतलब है? दैट शी कुड हैव आस्क्ड समबडी टू रीड. इट मीन्स दैट शी कुड हैव आस्क्ड समबडी टू रीड काशी यात्रे टू हर. ओके, नेक्स्ट. नाउ टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. येलो वुड में दो रोड्स हैं, डाइवर्ज्ड है, अलग अलग डायरेक्शन में जाती है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. सॉरी मैं दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ, मैं वहीं पर खड़ा हूँ बहुत लंबे टाइम से. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रोड को देखता हूँ जितनी दूर तक मैं उसे देख सकता हूँ. टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, जब वो बेंड हो जाती है. इन द अंडर ग्रोथ मतलब अभी नरेटर जब तक कि वो पॉइंट ना आ जाए जिसके बियॉन्ड वो देख नहीं सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट फील, व्हाई डज द पोएट फील सॉरी? पोएट सॉरी फील करता है क्योंकि वो दोनों रोड्स को ट्रैवल नहीं कर सकता. सो द पोएट फेल्ट सॉरी एज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ रोड्स. नाउ व्हाई कुड ही नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स? दोनों पर वो ट्रैवल क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ही वॉज सिंगल वन ट्रैवलर, वो एक ही ट्रैवलर है तो एक ही रोड पर जा सकता है. वॉट चॉइसेस डज द नरेटर हैव टू मेक? नरेटर को क्या चूज करना है? सो द नरेटर हैड टू चूज बिटवीन टू रोड्स. द नरेटर हैव टू मेक चॉइस बिटवीन टू रोड्स दैट diverged in the yellow wood. Now write the poetic device used in the above lines. इस लाइन में डिवाइस, पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है मेटाफोर. यहाँ पर जो रोड्स हैं वो लाइफ में जो चॉइसेस होती हैं हमारे, उसको रिप्रेजेंट करती है कि दो चॉइसेस हैं, क्या किसको आप चूज़ करें, उसमें जनरली आप कंफ्यूज रहते हैं. ओके, नाउ आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 6 को आंसर करना है आउट ऑफ 7. So first is Duke was an extraordinary dog. What qualities did he exhibit to justify this? Discuss. ड्यूक ने कौन कौन सी क्वालिटीज़ को एग्जिबिट किया जिससे प्रूव होता है कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉग था? तो ड्यूक बहुत ही लॉयल था, इंटेलिजेंट था, डिटर्मिन्ड था एंड सेल्फलेस था, सेल्फलेस, कंपैशनेट था, ब्रेव था, ब्रेव. उसने उसका जो मास्टर था उसको उसके डिप्रेशन की स्टेट से निकाला था. ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड. डिटर्मिन्ड. ही understood the needs of his master, and pushed him out of his depressed state. Okay, next. Now do you think Private Quelch learned a lesson when he was chosen for cookhouse duties? प्राइवेट क्वेल्च को जब कुक हाउस ड्यूटीज़ के लिए चूज़ किया गया, क्या उसने सबक सीखा, लेसन लर्न किया? बिल्कुल नहीं. वहाँ पर भी जो कुक्स थे उनको वो अपनी बोरिंग लेक्चर्स सुनाता रहता था, अपनी नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करता रहता था. उनके जो खाना बनाने के तरीके हैं उन्हें क्रिटिसाइज़ करता रहता था, कैसे वो अनहाइजीनिक है, अनसाइंटिफिक मेथड है. एक बार वॉल के अगेंस्ट उनको खड़े रखा क्योंकि वो जो पटेटोज़ को पील करते हैं उनसे वो एक वेस्ट ऑफ विटामिन के जैसा है, उनका वो तरीका सही नहीं है. तो आप लिखेंगे नो, Private Quelch didn't learn a lesson when he was chosen for cookhouse duties, as he continues, वो continue करता है to demonstrate his knowledge, अपनी knowledge को show off करना, and criticizes the other cooks for their unhygienic and unscientific methods. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक वो सीन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही मेक्स देम स्टैंड अगेंस्ट द वॉल एंड क्रिटिसाइज द वे दे पील पोटैटोज, सेइंग इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ विटामिन्स. ही ऑल्सो गिव्स देम लॉन्ग लेक्चर्स ऑन बोरिंग टॉपिक्स. उन्हें पब्लिकली करेक्ट करता था एंड
publicly corrects them to embarrass them, which embarrasses them, embarrasses them, जिससे वो embarrassed फील करते थे. ओके, नेक्स्ट. नाउ व्हाई वाज इट नेसेसरी टू कीप हैरोल्ड्स फादर्स प्रोफेशन अ सीक्रेट फ्रॉम हिम. हैरोल्ड के जो पेरेंट थे वो उसके फादर के प्रोफेशन को उससे सीक्रेट रखना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था बॉक्सिंग एक इन्फीरियर प्रोफेशन है. उनके फादर एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे. सो बिकॉज दे थॉट दैट बॉक्सिंग वॉज एन इन्फीरियर प्रोफेशन, और हैरोल्ड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा अपने फादर की इमेज एज अ प्रोफेशनल बॉक्सर. एंड दे ऑल्सो थॉट दैट इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर हैरोल्ड टू एक्सेप्ट द इमेज ऑफ हिज फादर एज अ प्रोफेशनल बॉक्सर. ओके. Now, you don't see or hear any such capers in real life. रियल लाइफ में तुम ना तो कभी देखोगे ना ही सुनोगे इस तरीके की केपर्स. केपर्स मतलब बहुत ही रेडिकुलस, बहुत ऐसी चीज़ें जो सच नहीं होती, बनाई गई जोक के जैसे अनबिलीवेबल स्टोरीज. सो हु इज़ द स्पीकर. स्पीकर है जॉन ए पेस्कर्ड. ए पेस्कर्ड. नाउ व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट. वो किन केपर्स के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर. जो बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स हैं उनमें जो रोमांस को दिखाया जाता है जिस तरीके से, उसको वो क्रिटिसाइज करता है. व्हाट इज़ सो आयरनिकल अबाउट दिस स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में आयरनी क्या है, क्योंकि उसका जो खुद का रियल लाइफ रोमांस था वो बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट हुआ था जैसे नॉवल में गिवन था. सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट रोमांस डिस्क्राइब्ड इन अ बेस्ट सेलिंग नॉवल, और क्रिटिसाइज करता है उसके कैरेक्टर्स को एज अनरियलिस्टिक, कि वो रियलिस्टिक नहीं है. कि इसमें एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन है और जो एक बहुत फाइनेंशियली वेल्दी लेडी से मिलता है, और फिर उनकी शादी हो जाती है. कोई भी क्लास, स्टेटस, एज का बैरियर उसमें नहीं दिखाया गया जैसा कि रियल लाइफ में नहीं होता है. एंड द आयरनी about this statement is that in his own case, because it is ironical, because in his own case he romanced his wife in the same way, wife in the same manner as given in the novel. Okay, next. व्हाट इज़ द रिफ्रेन इन द पोएम द ब्रूक. रिफ्रेन मतलब एक लाइन जो बार बार आई हो. द ब्रूक पोएम में रिफ्रेन क्या है, एंड व्हाट इफेक्ट डज इट क्रिएट. वो क्या इफेक्ट क्रिएट करती है. तो उसमें रिफ्रेन जो लाइन बार बार यूज हुई है द ब्रूक में, वो है फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो. लोग आते जाते रहेंगे बट आई गो ऑन फॉर एवर. And the effect it creates is that is the transitory nature of man but permanent and eternal nature of the brook. Eternal nature, वो eternal है, हमेशा रहने वाली है, of the brook. Next. Now, why do you think Wordsworth has chosen the song of the nightingale and the cuckoo for comparison with the solitary reaper song. वर्ड्सवर्थ ने, पोएट ने, नाइटिंगेल और कुकू के सॉन्ग को क्यों कंपेयर किया सॉलिटरी रीपर के सॉन्ग से, क्योंकि ये दोनों ही जो बर्ड्स हैं, कुकू एंड नाइटिंगेल, बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग गाती है. बिकॉज द नाइटिंगेल एंड कुकू हैव मेलोडियस वॉइसेस. और कोई भी अगर टायर्ड ट्रैवलर कहीं से जा रहा हो, पेड़ के नीचे वो रुकता है, तो इनका सॉन्ग सूद करता है उसको. एंड देयर सॉन्ग्स सूद टायर्ड ट्रैवलर्स हु स्टॉप फॉर अ ब्रेक
अंडर द शेड ऑफ द ट्री। और यही सेम इफेक्ट सॉलिटरी रीपर के सॉन्ग का हुआ है वर्ड्सवर्थ के ऊपर, तो इसलिए उसने उनसे उन्हें कंपेयर किया है, शेड्स ऑफ द ट्री। एंड सिंस सॉलिटरी रीपर्स सॉन्ग हैड द सेम effect on Wordsworth, so he compared Solitary Reaper's song with Nightingale and Cuckoo. Okay, next. Now, how do you think the rain quenches the thirst of the fields? बारिश कैसे फील्ड्स के की जो प्यास है उसको क्वेंच करती है, बुझाती है और क्योर करती है एलिमेंट ऑफ द क्लाउड्स, क्लाउड्स के एलिमेंट को, उनकी बीमारी को। तो फील्ड्स के थर्स्ट को क्वेंच करती है, वहाँ पर जो क्रॉप्स हैं पानी उनके लिए ज़रूरी है तो वो उन्हें प्रोवाइड करा के, और क्लाउड्स क्योंकि बहुत हैवियर हो जाते हैं उनमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनकी वजह से, तो उनको वो रिलीव करती है। सो द रेन क्वेंचेस द थर्स्ट ऑफ द फील्ड्स बाय वाटरिंग क्रॉप्स, वाटरिंग प्लांट्स एंड कूलिंग द लैंड को कूल करके और उन्हें पानी देकर। और ये एंड इट क्योर्स द एलिमेंट ऑफ द क्लाउड्स बाय रिलीविंग them of the weight of water droplets and then making them lighter. Droplets making them lighter, उन्हें हल्का बनाकर। ओके, नेक्स्ट। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 6 मार्क का एक क्वेश्चन है। लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस आर ग्रेट ह्यूमन वैल्यूज दैट वी मस्ट ट्राई टू इम्बाइब। लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस, माफ़ करना, ये ग्रेट ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जो हम सबको इम्बाइब करनी चाहिए। डिस्कस करिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले द बिशप्स कैंडलस्टिक्स। ओके, प्रॉपर आंसर इसका देखते हैं बिकॉज 6 मार्क का आंसर है, इतना बड़ा लिखा नहीं जाएगा यहाँ पर। सो देर इज़ नो डाउट दैट लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस ये ग्रेट ह्यूमन वर्च्यूज़ हैं। वी शुड ट्राई टू इम्बाइब देम इन आर डे टू डे लाइफ। वी शुड लर्न टू लव ऑल। वी शुड बी कंपैशनेट टूवर्ड्स द वीक, के प्रति कंपैशनेट होना है। वी शुड फॉरगिव ऑल दोज जिन्होंने हमें ऑफेंड किया है, हार्म किया है इन एनी वे। द बिशप इन द प्ले द बिशप्स कैंडलस्टिक्स इज अ ट्रू क्रिश्चियन हु हैज़ इम्बाइब्ड इन हिम द डिवाइन वर्च्यूज ऑफ लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। ही लव्स वन एंड ऑल, सबको वो प्यार करता था विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ही ट्रीट्स इवन द कन्विक्ट एज हिज फ्रेंड एंड गेस्ट। द कन्विक्ट प्रूव्स टू बी अनग्रेटफुल बाय स्टीलिंग द सिल्वर कैंडलस्टिक्स एंड अ पर्सन हु ऑफर्ड हिम फूड एंड शेल्टर एंड कंफर्टेड हिम। हाउएवर बिशप ने उसको फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया ईजिली, रादर उसने कैंडलस्टिक उसी को गिफ्ट कर दिया टू हिम, जिससे कि वो एक नई लाइफ को शुरू कर सके। दिस इज़ व्हाट वी शुड डू इन आवर लाइफ। हालांकि ये करना दो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, आसान नहीं है। ओके, नेक्स्ट। नाउ डिस्क्राइब इन ब्रीफ द 7 स्टेजेस इन मैंस लाइफ अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर। शेक्सपियर के अकॉर्डिंग कौन सी 7 स्टेजेस होती है एक पर्सन की लाइफ में। So according to Shakespeare, these are 7 stages in man's life: infancy, schoolboy, teenager, young man, middle-aged, old-aged, dotage and death. So first is infancy, थोड़ा सा explain आपको करना है। Infancy, a helpless baby होता है सबसे पहले वो, just trying and throwing up. Second stage, schoolboy, this is where his formal education start होती है, but he is not entirely happy with school. उनकी मदर ambitious होती है उसके बारे में, वो उसके फेस को वॉश करती है thoroughly before sending him off to school, but he goes very slowly and reluctantly. reluctant होता है, नहीं जाना चाहता स्कूल में, slowly वो जाएगा। Then teenager, he is grown into his late teens and his main interest is girls. He is likely to make a bit of a fool of himself with them. He is sentimental, sighing and writing poems to girls, making himself a bit of ridiculous. Now stage 4, young man, he is bold and fearless soldier, passionate in the causes he is prepared to fight for and quickly spring into action. He works on developing his reputation and takes risk to that end. Now, stage 5, middle-aged. He regards himself as wise and experienced and doesn't mind sharing his views and ideas with anyone and likes making speeches. He's made a name for himself and is prosperous and respected. As a result of his success, he's become vain. He enjoyed the finer things in life like good food. Then old man, now he is old and nothing like his former self physically or mentally. जैसे पहला था वो वैसे नहीं रहता है. He looks and behaves like an old man, dresses like one and his thin piping voice is now his influences. जो उसका influence था वो अभी चला जाएगा, slips away.
Seventh stage, dotage and death. He loses his mind in salinity, and his hair and teeth fall out, and his sight goes. Then he loses everything and sinks into the oblivion of death. Okay, that's all students. ये था 9th क्लास इंग्लिश कम्युनिकेटिव का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.